Hello student, welcome to the Gyan Minjri Vidyapeeth Mahua online education. I Abhay Vyas is today resuming our syllabus with the chapter number 2. The name of the chapter that is head and body sections. Right? In the previous chapter we have discussed the basic topics related to the internet and the basic thing about the HTML. We have also completed the basic structure of HTML in which we have seen the different kind of tags, right? After that we have discussed about the formatting tags. Now onwards we are going to start with the basically HTML documents different types of parts. Document के अंदर जो है वो basically there are two parts are there. HTML document which is divided into two parts. The first part which is named as head section and the second part which is named as body section. Yes, we have seen this two tag in the first chapter. हमने पहले चैप्टर के अंदर ये दो टैग तो सीखी थी बट उसके अंदर डेप्थ में हम नहीं गए थे. But you all know that what is the use of head section. So basic use of head section is head section include the specific additional information related to the HTML. So normally we have discussed about the title tag into the head tag. Head tag के अंदर हमने एक tag सीखी थी उसका नाम था title tag, right? So normally title tag is used to set the title of the HTML page. HTML page का title set करने के लिए we have used the title tag. But there are another tags also available. You can add within this head tag, right? Basically head tag is used to add the additional information of web page, right? So this is the basic use of head tag. हेड टैग के अंदर जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो वेब पेज की होती है, जो एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, वो सभी इंफॉर्मेशन यू आर एबल टू ऐड इन द हेड tag, right? So this is the basic use. So right now we are going to start with the particular other tags which is available in the head tag. जो other tag HTML के head tag के अंदर available है उसके बारे में we are going to discuss right now. So the basic use of head tag, that is it will provide the additional information of web page. We have seen one tag, that is the title tag in head tag, right? This tag we have discussed. Now we are going to discuss the new tag which is available in head tag. This tag you just have to learn theoretically, right? इसका कोई practical हमारे syllabus में नहीं है, but you just have to know about this tag. So the tag name, that is a meta tag. It's simply write as meta, right? This is the basic tag, meta tag. As I talk that head tag is used to add additional information of web page. तो ये जो additional information हमें add करनी होती है web page की, वो हम meta tag के अंदर कर सकते हैं, right? So meta tag के अंदर कौन सी additional information we are going to add? So उस information के अंदर meta tag contains the attribute. Meta tag के जो है वो दो attribute है, that is name and content, right? So the first attribute, that is name, right? Meta tag का पहला attribute जिसका नाम है name. अभी मेटा टैग के अंदर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन वेब पेज के बारे में ऐड करेंगे. तो नेम के अंदर जो है ना वो हम तीन टाइप के नेम टाइप करेंगे. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम आर देयर व्हिच यू कैन ऐड इन अ मेटा टैग. द फर्स्ट टाइप, दैट इज डिस्क्रिप्शन. Right? This is the first type, that is description, right? So basically description, if you want to add additional description related to your web page के बारे में जो भी description है, means के किस बारे में ये web page हम बना रहे हैं, so that information you can add with this specific attribute, that is the description, right? name के अंदर आप अगर description लिखोगे तो उसके द्वारा आप वेब पेज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर ऐड कर सकोगे.
you will have to follow the syntax which is I am going to apply over here. जो भी syntax मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग ये सिंटेंस को आपको कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ेगा while you add this tag in a web page, in a coding, right, in a notepad. Now this is the first attribute, that is name. Name के अंदर हमने जो है हम अभी क्या ऐड करने वाला है, that is description. So description के अंदर आप क्या ऐड करोगे, so that the another attribute of meta tag, that is content, right. कौन सी कंटेंट आप ऐड करना चाहते हो, राइट आप वेब पेज के बारे में कौन सी कंटेंट ऐड करना चाहते हो, तो यू कैन ऐड दिस कंटेंट ओवर हियर. सपोज आई एम गोइंग टू ऐड द कंटेंट. दिस इज, आई एम टेकिंग इट इनटू द न्यू लाइन. दिस इज बेसिक वेब पेज. दिस इज माय सिंपल कंटेंट, राइट. दिस इज बेसिक वेब पेज. ये जो वेब पेज है वो कौन सा है, बेसिक वेब पेज है. तो ये एक सिंपल कंटेंट मैंने ऐड कर दी एंड माय मेटा टैग इज ओवर, बिकॉज मेटा टैग इज नॉट अ पेयर टैग. वो जो है वो जोड़ी वाली टैग नहीं है, वो एक इंडिविजुअल टैग है, राइट. सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इट एंड सिंपली यू विल हैव टू क्लोज दिस स्पेसिफिक एंगुलर ब्रैकेट. सो दिस इज अबाउट द मेटा टैग. मेटा टैग के अंदर यही आएगा, एक तो नेम एट्रीब्यूट, एक तो कंटेंट एट्रीब्यूट. नेम के अंदर पहली जो वैल्यू हमने टाइप की वो क्या है, डिस्क्रिप्शन. तो वेब पेज के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन आपको अप्लाई करना है, यू कैन गिव ओवर हियर एंड यू कैन ऐड दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इन अ कंटेंट. कंटेंट के अंदर कौन सी कंटेंट, तो जो डिस्क्रिप्शन आप वेब पेज के बारे में देना चाहते हो, दैट यू विल हैव टू ऐड ओवर हियर. इसका कोई, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द थिंग्स, इसका कोई प्रैक्टिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि भाई हेड टैग के अंदर और कौन कौन सी टैग यूज कर सकते हैं. मोस्टली प्रैक्टिकल के अंदर बॉडी टैग के अंदर सभी टैग्स जो है होती है, फॉर्मेटिंग वाली टैग और द अदर टैग्स ऑल्सो, दैट इज अवेलेबल इन योर सिलेबस. बट दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ द कंसेप्ट अबाउट द मेटा टैग, राइट. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. मेटा टैग के अंदर मैंने पहले बोला था कि नेम के अंदर 3 टाइप की वैल्यू आती है. दिस इज द फर्स्ट टाइप, दैट इज डिस्क्रिप्शन. The second type of value you can add over here, that is keyword, right. That is keywords. You have to add over here keywords. Keywords का मतलब ये कि जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आते हैं रिलेटेड टू द वेब पेज के बारे में, तो दैट पर्टिकुलर कीवर्ड यू कैन टाइप ओवर हियर. सपोज मैं अभी एक हमारा बेसिक पेज ही बना रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू ऐड ओवर हियर बेसिक, देन इंट्रोडक्शन. ऐसे एक कॉमन कीवर्ड मैंने 2 यहाँ पर टाइप किए. पहला दैट इज BASIC, दूसरा दैट इज इंट्रोडक्शन. क्योंकि ये हमारा बेसिक वेब पेज है, तो यहाँ पर मैंने बेसिक और इंट्रोडक्शन जैसे कीवर्ड को कंटेंट के अंदर टाइप किया. तो ये 2 क्या हो गए, मेरे कीवर्ड हो गए. अभी ये जो चीज है ना, वो कनेक्ट होती है सर्च इंजन के साथ. जो भी गूगल जो है वो सर्च इंजन है. तो बेसिकली व्हाइल यू एग्जीक्यूट द पेज इन अ स्पेसिफिक वेब ब्राउजर, जो भी वेब ब्राउजर के अंदर आप इस पेज को एग्जीक्यूट करोगे, एट दैट टाइम दिस कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्च इंजन. सर्च इंजन जो है ना, वो किसी भी चीज को सर्च या तो लोकेट करने के लिए ये कीवर्ड का यूज करता है. दैट यू हैव ऐड ओवर हियर, राइट. So this is the basic idea about the second specific value of name, that is keywords. The third specific information related to this name attribute, that is author. That means who is the author of this page, कौन ये पेज जो है वो बना रहा है, किसने डिजाइन किया, तो उसका नाम. अभी मैं आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर माय ओन नेम, because I am going to create this page, right. So this is the all about the meta tag. ये meta tag जो है वो क्या करेगा, वेब पेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर करेगा. ये आपको कोई रिजल्ट आउटपुट में नहीं दिखा रहा है. अगर हम ये मेटा टैग की टैग को रन करेंगे, तो मुझे इसका नेम या तो कंटेंट यहाँ पर लिखी हुई वो मुझे आउटपुट में वेब ब्राउजर के अंदर नहीं दिखेगी.
बट ये जो है हमारे पेज के बारे में इंफॉर्मेशन ओनली स्टोर करता है अपने अंदर. सो यू कैन सी दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेब पेज बाय दिस मेटा टैग. मेटा टैग के द्वारा आप जो है वो वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो. So there are three values are available in a name attribute. That is first value, that is which one? The first value, that is description, right? The first thing, that is description. The second thing, that is keywords, and the third, that is author. ये मैंने अभी एक साथ में लिखा है, आप लोगों को साथ में कोड लिखते समय नहीं लिखना है, राइट? ये तो आप लोगों को समझने के लिए आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस ऑल द थिंग्स टुगेदर. देयर आर थ्री वैल्यूज ऑफ नेम, दैट इज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड ऑथर. एंड द मेटा टैग हैविंग टू एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट है मेटा टैग के, दैट इज नेम एंड कंटेंट. गेटिंग? दिस इज ऑल अबाउट द मेटा टैग. ये जो है वो ब्राउजर के बारे में, जो वेब पेज आप बना रहे हो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा. ये आपको आउटपुट में कुछ शो नहीं करेगा, बट जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन स्टोर विद इन दिस मेटा टैग. द सेकेंड थियोरेटिकल कंसेप्ट एंड द प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑल्सो, दैट इज अबाउट द कमेंट. बेसिकली देयर आर वन स्पेसिफिक फॉर्मेट टू राइट द कमेंट. आप जो है वो सभी चीज में कमेंट अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो. जैसे कि अगर आप कोई भी HTML का कोड ऐड कर रहे हो तो वो कोड किस बारे में है, तो उसको कुछ कमेंट देना चाहते हो तो यू कैन ऐड द कमेंट. हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन द सिंपल एग्जांपल ऑफ HTML कोड इन विच विद इन द हेड टैग आई एम यूजिंग द कमेंट पोर्शन. कमेंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर इनिशियली एक्सप्लेनेशन, ये जो है वो एंगुलर ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर ऐड करना होगा, देन टू स्पेसिफिक डैश यू विल हैव टू ऐड ओवर हियर. दो जो है वो डैश आपको यहाँ पर ऐड करना है, सिंपल डैश, राइट? देन यू कैन टाइप द कमेंट ओवर हियर. सपोज आई एम गोइंग टू टाइप द कमेंट एज दिस इज डेमो कोड, एंड एट लास्ट आई एम गोइंग टू क्लोज दिस स्पेसिफिक पोर्शन. मैं इसे यहाँ पर लास्ट में जो है वो क्लोज करता हूँ. तो क्लोज करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, दो बार ऐसे डैश कर यू विल हैव टू क्लोज दिस स्पेसिफिक एंगुलर ब्रैकेट, राइट? दिस इज द सिंटैक्स ऑफ कमेंट. इनिशियली यू कैन स्टार्ट दिस एंगुलर ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन टू स्पेसिफिक डैश, देन यू कैन राइट डाउन द कमेंट टेक्स्ट. यहाँ पर आप कमेंट टेक्स्ट ऐड कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पर ऐड किया दिस इज डेमो कोड, एक सिंपल कमेंट दी है मैंने. कमेंट जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगी, बट आपके कोड के अंदर आप किसी भी पोर्शन के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो यू कैन गिव कमेंट बाय दिस स्पेसिफिक सिंटैक्स. एट लास्ट टू डैश एंड देन you will have to close this angular bracket. Now let's just, I'm going to save as this specific code, and I'm going to give the name over here as comment.html, right? So I'm going to save it in a C drive. I'm going to open this specific file, the code name, that is comments.html. I'm going to open it with the help of Google Chrome, and this is the specific Google Chrome. My file is executed, but comment is not displayed over here. Comment जो है वो display नहीं होगी, but comment जो है वो आपके कोड के अंदर आप specify कर सकते हो, right? So this is about the comment. So here the next concept we are going to discuss, that is about the meta tags new attribute. अभी मेटा टैग के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट देखे, दैट इज नेम एंड कंटेंट, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू सी द न्यू एट्रीब्यूट इन अ मेटा टैग, और इसका रिफ्लेक्शन हम आउटपुट में भी देखेंगे. सो द स्पेसिफिक थिंग आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर, दैट इज मेटा, देन द न्यू एट्रीब्यूट नेम, दैट इज http, देन डैश, देन equiv, दैट इज equi, right? Then is equal to, into the double quote you have to write down refresh, refresh, that is refresh. Then you can write over here, that is content equal to, into the double quote you can write over here, that is 5.
सपोज आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर 5, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 5 यहाँ पर राइट किया. नाउ मेटा टैग का न्यू एट्रीब्यूट दैट इज http इक्वी. इसका मतलब ये होता है कि आप अगर आपका वेब पेज जो है आपका, उसे आप रिफ्रेश करना चाहते हो आफ्टर 5 सेकेंड. हियर द कंटेंट इक्वल टू 5, दैट मीन्स इट शोज अस द सेकेंड. हर 5 सेकेंड में हमारा वेब पेज जो है वो रिफ्रेश होगा, राइट. सो दिस इज अबाउट द रिफ्रेश एंड कंटेंट इक्वल टू 5. अभी इसका जो प्रैक्टिकल है वो हम यहाँ पर देखेंगे. सो आई एम गोइंग टू सेव दिस कोड. इसे मैं सेव करता हूँ, जो मैंने पहले सेव किया था, कमेंट ही नाम है उसका. इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ. नाउ ऑब्जर्व ओवर हियर, आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ पर ब्लिंकिंग होगा. हुआ ब्लिंकिंग? जस्ट अगेन ऑब्जर्व द थिंग्स. यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह ब्लिंकिंग होगा आफ्टर 5 सेकेंड. गेटिंग? सो ये जो ब्लिंकिंग हो रहा है उसका मतलब कि ये पेज जो हमारा है वो ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड के बाद रिफ्रेश हो रहा है, राइट. सो दिस इज अबाउट द मेटा http इक्वी रिफ्रेश. अभी ये तो बात हुई हर 5 सेकेंड में हमारा पेज रिफ्रेश होगा, बट हमें यहाँ पर एक और टास्क करना है. जैसे कि मेरा पेज जो है वो 5 सेकेंड के बाद रिफ्रेश तो होगा, बट वो एक नई वेबसाइट को ओपन कर देगा आफ्टर द 5 सेकेंड. सो ऐसा टास्क भी आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवा सकते हो. सो यू विल हैव टू मेक वन चेंज ओवर हियर. आपको यहाँ पर एक चेंज करना होगा विद इन दिस कंटेंट टैग. कंटेंट टैग के अंदर ही आपको कुछ ऐड करना है. तो यहाँ पर से डबल कोटेशन में एक हटा देता हूँ. ये टैग जो है अभी कंटिन्यू है, शुरू है. उसके अंदर 5 के बाद सेमीकोलन. देन आई एम गोइंग टू ऐड ओवर हियर दैट इज URL, क्योंकि हमें एक जो है वो नई URL ओपन करनी है, नई वेबसाइट ओपन करनी है. विद इन दिस स्पेसिफिक कोड आफ्टर 5 सेकेंड एक नई वेबसाइट ओपन करनी है. तो यहाँ पर URL, उसके अंदर URL के अंदर आपको टाइप करना है दैट इज इक्वल टू इनटू द सिंगल कोड. अभी यहाँ पर सिंगल कोड के अंदर लिखना है. एक रूल्स है कोडिंग का कि विद इन द डबल कोड. ये डबल कोड अभी शुरू ही है, कंप्लीट नहीं हुआ. तो डबल कोड के अंदर अगर आप कोई भी चीज स्पेसिफाई करना चाहते हो तो यू कैन यूज ओवर हियर दैट इज सिंगल कोड. तो यहाँ पर आप जो है उस आपको नई वेबसाइट का URL टाइप करना है. तो यू कैन टाइप हियर http देन colon देन // एंड यू कैन टाइप द नेम. सपोज आई एम गोइंग टू ओपन google.com. मुझे google.com साइट ओपन करनी है. तो उसका पूरा URL क्या होगा? http हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये जो है वो एक तरह का प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे. देन सेमीकोलन देन // देन यू विल हैव टू राइट डाउन द वेबसाइट नेम. दैट इज राइट नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द सर्च इंजिन नेम दैट इज google.com. देन एट लास्ट यू विल हैव टू क्लोज दिस डबल कोड, राइट. सो नाउ सी द थिंग्स. कंटेंट के अंदर क्या हुआ? ये डबल कोड शुरू हुआ, डबल कोड यहाँ पर कंप्लीट हुआ. इस डबल कोड के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ पर 5 सेकेंड के बाद एक नई URL मीन्स कि नई वेबसाइट ओपन होगी, जिसका नाम क्या है? http :/google.com. ये URL का पूरा एड्रेस है. और इस एड्रेस को हमने कहाँ पर स्पेसिफाई किया है? सिंगल कोटेशन में. तो ये सिंगल कोटेशन में ये एड्रेस आ गया और एट लास्ट ये डबल कोटेशन जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, राइट. सो आफ्टर 5 सेकेंड google.com विल बी ओपन. तो इसे मैं यहाँ पर सिंपली सेव करता हूँ. सेव करने में मेरी फाइल का नाम ऑलरेडी दिया गया है. क्या है नाम फाइल का? comment.html. तो उसके अंदर ही ये फाइल मेरी क्या होगी? सेव होगी, राइट. देन आई एम गोइंग टू ओपन दिस comment.html. इसे मैं ओपन विथ में जाकर ओपन करवाता हूँ. नाउ सी आफ्टर 5 सेकेंड इफेक्ट आएगी और google.com जो है वो ओपन हो जाएगा. गेटिंग? यहाँ पर जो है वो सर्च हो रहा है google.com. अभी इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक ये आपको google.com देखा आपने, google.com जो है वो खुल गया. सो आफ्टर 5 सेकेंड इट विल ओपन एनी वेबसाइट. जो भी वेबसाइट आप यहाँ पर टाइप करोगे कोड के अंदर वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी. यहाँ पर google.com किया है मैंने. सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ yahoo.com. इसे मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से. और अगेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस फाइल बाय राइट क्लिक, ओपन विथ एंड माय वेब ब्राउजर.
and then just see the things. After 5 seconds it will open yahoo.com website, right? The searching process is executing over there. बट ये बेस्ड ऑन नेट है. नेट क्या बेस्ड, यहाँ पर जो है वो कोई इशू आ रहा है google.com में कुछ और मेरे कंप्यूटर में भी टाइमिंग और डेट टाइम का इशू है. दैट्स व्हाई इट्स नॉट ओपन द साइट. बट यू कैन ओपन एनी वेबसाइट. यू कैन गिव जस्ट डायरेक्टली द URL over here. So after particular second it will automatically open this website, right? So this is about the meta tag की ये जो नई specific attribute है, that is HTTP equi, उसके अंदर आपने refresh add किया और then you can add the content by this specific code. Then the next specific tag that is for the theory purpose, you just have to know the thing that is base tag. Base tag having one attribute that is href is equal to, you can specify here any website address. किसी भी वेबसाइट का आप जो है वो आपका बेस एड्रेस टाइप कर सकते हो. बेस एड्रेस का मतलब ये कि आपकी जो मेन एड्रेस है, आपका जो बेस, आपका जो ओरिजिन एड्रेस है, वो एड्रेस कौन सा है, राइट? आपका पेज का जो ओरिजिन एड्रेस है वो कौन सा है. तो यहाँ पर ओरिजिन एड्रेस में मैं यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के तौर पर I am typing here that is http and suppose google.com. हमारा ओरिजिन एड्रेस तो हमारे कंप्यूटर के अंदर की फाइल ही होती है. बट राइट नाउ आई एम जस्ट टाइपिंग द नेम ऑफ द google.com over here, राइट? सो बेस टैग जो है वो आपको कोई आउटपुट में रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा. बट जब भी आप किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म या तो लॉगिन फॉर्म जैसा कोई बड़े बड़े फॉर्म्स जो है वो बनाओगे, एट दैट टाइम यू विल नो द यूज ऑफ द बेस टैग, राइट? तब हम इस बेस टैग का यूज जो है वो सीखेंगे. बट अभी फॉर द थियरी पर्पस जस्ट रिमेंबर द थिंग्स कि बेस टैग जो है वो बेस URL, आपकी जो एड्रेस की ओरिजिन URL है वो URL ऐड करने के लिए इस टैग का यूज होता है. सो दिस इज अबाउट द बेस टैग. तो ये जो हमने कॉमन टैग्स देखी है, दैट इज मेटा टैग, बेस टैग, तो ये सभी टैग जो है वो किसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं? हेड टैग के अंदर. तो थियोरेटिकली आपके सिलेबस के अंदर कई सारी टैग्स है जो हम हेड टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं. उसका यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है आपके बुक के अंदर. दिस ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ हेड टैग. हेड टैग के सारे एलिमेंट्स है, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो है हेड टैग, विच डिफाइंस इंफॉर्मेशन अबाउट योर डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो डिफाइन करता है. देन टाइटल टैग, which includes the title of our web page. Then the base tag, right? So base tag will define a default address or a default target for all links on a page. जितनी भी लिंक हमारे पेज के अंदर होती है उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो वो डिफॉल्ट जो भी बेस, जो भी हमने कोड यहाँ पर टाइप किया, उसके अंदर जो भी लिंक हम दे रहे हैं उसको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा, राइट? जितनी भी लिंक होती है उसे बाय डिफॉल्ट हमारे बेस टैग के अंदर जो भी URL है उसके अंदर वो रिडायरेक्ट कर देगा. देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज लिंक. ये टैग जो है वो थियरी के लिए ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अंदर इसका प्रैक्टिकल नहीं है. बट उसका यूज क्या है? तो बेसिकली दिस टैग इज डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स, राइट? हमारा डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर हम लिंक टैग के द्वारा जितने भी एक्सटर्नल सोर्स का मतलब कोई अदर वेबसाइट का एड्रेस या तो कोई अदर कंटेंट अगर आपके किसी भी कंप्यूटर के अंदर है तो उसका एड्रेस अगर आप दोगे तो आपके पेज के द्वारा अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करोगे तो अदर रिसोर्सेज जो है वो लोड होंगे, वो ओपन होंगे, राइट? सो दिस इज द यूज ऑफ लिंक टैग. देन मेटा टैग दैट वी हैव डिस्कस्ड, इट डिफाइंस द एक्सटर्नल और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ योर वेब पेज. देन द स्क्रिप्ट टैग, बेसिकली जितने भी वैलिडेशंस होते हैं वो स्क्रिप्ट टैग का यूज कर हम कर पाते हैं. तो वो जो वैलिडेशन होते हैं वो हम क्लाइंट साइड, मतलब हमारे कंप्यूटर में लोकली हम मैनेज कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन जब भी किसी भी फॉर्म को फिलअप किया होगा तो उसके अंदर सभी वैलिडेशन होते हैं. जैसे कि अगर आप गलत ईमेल आईडी डालो तो आपको रेड कलर में प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई दिस आईडी इज नॉट करेक्ट. तो ऐसे वैलिडेशंस जो है वो डिफाइन करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज होता है. देन द स्टाइल टैग, राइट? स्टाइल टैग का यूज जो है वो इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए होता है. कई इंफॉर्मेशन जो है उसे कलर कॉम्बिनेशन या तो उसे अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग करना हो अगर आपको, तो स्टाइल टैग इज यूज्ड, राइट? सो दिस ऑल आर द एलिमेंट
ऑफ हेड टैग। सो आज जो है, आज के लेक्चर में हमने हेड टैग के अंदर के सभी एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया है। ये सभी एलिमेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स थियोरेटिकली ही आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। प्रैक्टिकली जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट्स बॉडी टैग के होंगे। Right, so all the theory, all the elements of head tag we have completed in this lecture. We will meet in the next lecture with the body elements.